A very pleasant morning to all the dear students of class 9. I hope you all are absolutely well and safe at home and are enjoying your online learning and are regular with your studies and completing your work on time. So, talking about today's class 9, the today's topic that we are going to start with is something that you have learned earlier in your 7th standard. Means in 7th standard you have got a very good idea about this topic, and this is something that you have learned about the similar triangles and congruent triangles. Okay, there you have also discussed the similar one. So if you take two figures, or if you take two things like the pages of your notebook, okay, two page of your notebook, when you close your notebook, you see that all the pages do overlap on the each other, है ना. कोई भी पेज ऐसा नहीं होता कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है without in case except any deformity in the notebook. Okay, that is exception. So the two pages of the notebook are do overlap each other when they are superimposed on each other. ठीक है, superimpose करना means एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर completely रख देना as such that the two things cover each other. दोनों चीज़ें एक दूसरे को cover कर लें completely without leaving any part outside. That is called as superimposition. ओके, सुपरपोज करना भी बोलते हैं उसको, सुपर इम्पोज भी बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन या ओवरलैपिंग. Okay, such that the two things covers each other equally. Like if you cut two squares of equal side, like one square is of 4 centimeter side, each side is 4 centimeter, the other square is also 4 centimeter side, and when you cut these two squares and you do overlap with each other, both the cuttings, then you will find that both the square will completely cover each other. The two squares will completely cover each other. This is basically called as congruency. Okay, congruency means congruent means equal in shape as well as in size. Equal हो जाना, बिल्कुल इस तरीके से इक्वल हो जाना कि जब हम उन दोनों को ओवरलैप करें तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लें, completely कवर कर लें विदाउट लिविंग एनी पार्ट आउटसाइड. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंसी. सो हेयर वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, दिस कॉन्ग्रुएंसी दैट यू हैव लर्नड इन 7th स्टैंडर्ड ऑल्सो. ओके, 7th स्टैंडर्ड में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया देखे थे, सिमिलैरिटी के भी क्राइटेरिया देखे थे. ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स को आपने डिस्कस किया था. सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है? सिमिलर ट्रायंगल में ज़रूरी नहीं है कि उनका जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल हो, वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिमिलर ट्रायंगल्स में. लाइक हेयर अगर आप इस तरीके से देखेंगे दैट यू हैव, आई एम ड्राइंग रफली, ओके, विदाउट यूजिंग स्केल. सो यू हैव दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल and you just draw a larger one beside it, a right angled triangle, then these two right angled triangle are called as similar. Similar means ये दिखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, जैसे similar वर्ड का मीनिंग होता है, ये आपको दिखने में एक जैसे लग रहे हैं बट इनका साइज़ बिल्कुल इक्वल नहीं है. मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखूं, ओवरलैप करूं, तो ये बड़ा ट्रायंगल है, इसके कुछ पार्ट आउटसाइड रह जाएंगे. ओके, ये कम्प्लीटली ओवरलैप नहीं करेगा. सो दिस इज सिमिलर ट्रायंगल्स, दीज आर कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल्स. मतलब उनमें दे लुक्स सिमिलर टू ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल इन शेप एंड साइज. Okay, so in this topic, basically in this chapter, similar triangles are not discussed. We will be discussing the congruent triangles and the criteria for congruency, means how do we prove that the two given triangles will be congruent, and we will use the congruency criteria to solve our questions and to know about the triangles much more. Okay, so here these are similar, but if I just make a ditto, ठीक है, a same copy of this right angle triangle here, although it is somehow larger, but consider कीजिए कि ये मैंने सेम कॉपी बनाई है. ठीक है, सेम कॉपी बनाई है और मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर ओवरलैप करूं देन दे विल कवर ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड एज congruent triangles. Congruent triangles. So this is some explanation, you need not to write down it. Okay, so these are called as congruent triangles. So this is the idea that we are going to discuss today, and I will be discussing the 3 congruency criteria which are given in this section, and after that we'll discuss exercise 7.1 and some of the question I will be doing
some you will try by yourself. So now starting with the triangle, the PDF of these notes I will provide you in Google Classroom. Okay, you can refer from there also. So triangle, a closed figure formed by three intersecting lines is a triangle. You know very well, three line segment से मिलकर बना है triangle. It has three sides, three vertex, three angles. You know them, that what are the sides, what are the vertex, and what are the angles. Types: scalene triangle, isosceles triangle, and equilateral triangle. तो scalene triangle, a triangle which has no sides equal to one another. मतलब कोई भी side एक दूसरे के equal नहीं होती. You know very well. I'm just giving a recall or fast brushing up your previous memories. Okay. So scalene triangle is that. Isosceles triangle, a triangle having one pair of equal side. Okay, means two sides are equal to each other, and you know, you have learned that two sides are equal, और जो वो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं. मतलब अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म करूं, जस्ट कंसीडर इट एज रफ. सो अगर मैंने ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म किया कि ये ए बी साइड ए सी के इक्वल है, देन द अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इस इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ये है, इस इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ये है. तो आपके एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाता है. दिस इज द प्रॉपर्टी इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, यू विल लर्न इट और विल प्रूव इट इन दिस चैप्टर. ओके, सो जब दो साइड्स इक्वल हो किसी ट्रायंगल में, देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, द ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स इक्वल टू ईच अदर, so that is your equilateral triangle. Then congruent triangles. Two triangles are congruent if and only if. If and only if मतलब तभी होगा, ठीक है. वैसा वर्सा, if and only if का मतलब होता है वैसा वर्सा, कन्वर्स में भी ट्रू हो. If and only if one of them can be made to superimpose या superpose on the other so as to cover it exactly. ठीक है, तो ट्रू ट्रायंगल्स को हम congruent बोलेंगे जब वो कवर करेंगे exactly, या इफ एंड ऑनली इफ का मतलब कन्वर्स, मतलब उल्टा भी, रिवर्स भी इसका ट्रू होगा. रिवर्स कैसे होगा इसका? दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड कवर ईच अदर एग्जैक्टली, देन वी से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो दोनों तरफ से मतलब. नाउ द मेन थिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन हेयर इज, that is important. Okay, mark it as very important because students do mistake in this. Okay, and they can lose their marks for this. So if you have A, B, C and P, Q, R, I have made these two triangles exactly same by taking this BC 2 centimeter, drawing with the scale, and this is your 50 degree I have drawn. Okay, and again this is 50 degree I have drawn. So like this I have made these two congruent triangles exactly same, ABC, PQR. So I will say that ABC is congruent to PQR. ठीक है, अगर ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मैंने बनाए हैं, देन आई विल राइट इट एज कॉन्ग्रुएंसी. को लिखते कैसे हैं? दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इक्वल्स, मतलब आपको इक्वल ड्रॉ करना है और उसके बाद ये छोटा सा कर्व इसके ऊपर इस तरीके से. दिस इज योर साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. सो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, और इसको रीड हम ऐसे करते हैं दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर. तो जब ए बी सी ट्राइंगल है और पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है और वो उसको सुपर इम्पोज कर लेगा, देन देयर कम अनदर थिंग दैट इज बेसिकली योर कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो आपको पता भी है पहले से, बट यू विल टेक केयर ऑफ दिस. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में साइड्स भी होंगी और एंगल भी होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके? इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स जो साइड ए बी साइड पी क्यू को ओवरलैप करेगी, मतलब ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है. ठीक है, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, तो आपकी ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू है. बी सी साइड 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर साइड 2 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में इक्वल है, तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में क्यू आर है. और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स, तो आप इसको ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वही होते हैं जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में इक्वल होते हैं, एंड वी प्रूव देम. ओके, व्हेन वी प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी, एक्चुअली इफ यू आर प्रूविंग दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, और आपने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी बाय यूजिंग एनी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो आप देखेंगे कि ये जो नेमिंग आप करते हैं, ए बी सी अगर आपने पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट लिखा है, तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल पी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू,
C के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल R. ओके, यू विल टेक केयर दैट. मतलब अगर ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव किया है पी क्यू आर के, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर या क्यू आर पी. मतलब एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल नहीं है आपका, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है. क्योंकि मैंने क्या किया है ना, मैं बताती हूँ आपको. ये 50 डिग्री है एग्जैक्टली, ये भी 50 डिग्री है. आई हैव मेड देम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. सो अगर ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री. ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. तो जब ये 80 डिग्री है और आपने प्रूव इस तरीके से किया है, ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से किया है प्रूव, जो आप अभी पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन आपने इसको लिख दिया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी, आपने नेमिंग पर ध्यान नहीं दिया. तो यहाँ से आपका ये पता चल रहा है, इस नेमिंग से आपका ये पता चल रहा है दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू. बट हेयर यू कैन सी दैट एंगल ए तो 80 डिग्री है और एंगल क्यू 50 डिग्री है, तो वो इक्वल है ही नहीं. तो आपने ये नेमिंग इनकरेक्ट लिखी है. कहने का मतलब ये है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो आप इक्वल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग दिखाएंगे आप उसको उसी के कॉरस्पॉन्डिंग नेम करेंगे. इस नेमिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है. यू मस्ट नो हाउ टू नेम इट. ओके. और अगर आपके पास लिखा हुआ है दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, लाइक क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है दैट एंगल ए इज कॉरस्पॉन्ड टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर. सिमिलरली दिस ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, ए सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर. ठीक है. तो हम यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकाल सकते हैं. एंड द रिजल्ट इज दैट व्हेन वी प्रूव two triangles as congruent triangles, then their corresponding parts become equal to each other. ठीक है. ये आपका रूल है, रिजल्ट है कि जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT जिसको बोलते हैं. ठीक है. CPCT मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, आपको पता चल जाएगा अभी. सो स्टार्टिंग फॉर द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, you have the first criteria as side angle side congruence rule. Okay, side angle side congruence rule, which is just explained on the page number 111 of your NCERT book, and it is by using 113 of your NCERT book, and it is by using the axiom only, means it is just an axiom. So you don't have any proof for it. You can prove it basically by taking some assumptions, but we need not, and it is not, the theorem is also, the proof is also there, not there in the exam. So you will have just the criteria, you understand the criteria, that side angle side congruence rule आपका पहला criteria है. Two triangles are congruent if two sides and the, क्योंकि इसमें देखो आप side दो बार side आ रहा है ना, तो two sides and the included angle, उसने बोला है included angle. included वर्ड की इंपॉर्टेंस है, मतलब टू साइड्स तो हैं लेकिन जो एंगल की बात आप कर रहे हैं ना वो included है. included कहाँ पर? between the two sides. included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle. इसका मतलब ये कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल, अगर ये टू साइड्स हैं तो ये एंगल है. ठीक है. तो टू साइड्स और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, इक्वल हो जाए दूसरे ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके. सो हियर यू कैन सी द फिगर ABC PQR. if you assume that ABC is congruent to PQR. ठीक है. तो साइड एंगल साइड का मतलब ये है कि AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और ये जो एंगल इंक्लूडेड है, एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स, एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स. ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर एंगल ले लिया, यहाँ पर एंगल ले लिया और एंगल इंक्लूडेड ही नहीं है और आपने बोला कि टू साइड हो गई, एंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. नो, इट विल बी रॉन्ग. You must have the side, one side equal to other side, the second side equal to the corresponding side, and the included angle equal. अगर AB equal है PQ के, BC equal है QR के, and angle B is equals to angle Q, then you will say that ABC is congruent to PQR. और आप यहाँ से देख सकते हैं that AB equal है PQ के, ठीक है, corresponding है ना, and BC equal है QR के, और angle B
यहाँ पर मिडल में है तो बी क्यू के इक्वल है तो क्यू भी मिडल में आएगा। और अगर आप यहाँ से सी पी सी टी देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा ए सी इज इक्वल टू पी आर, और ये रहा आपका ए सी, यहाँ से ए सी और ये रहा आपका पी आर। ठीक है, ये आपका सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल हो गए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया। द सेकेंड क्राइटेरिया, angle side angle congruence rule. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. Very simple, वैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ पर two angle है और side है, तो side आपकी included ही होनी चाहिए। angle side angle का मतलब है दोनों angle के बीच में included होनी चाहिए side. It means अगर मैं यहाँ पर इस angle को equal करूँ इस angle के, और ये वाला आपका G angle equal हो जाए T angle के, ठीक है, ई एफ जी एंड आर एस टी में, और एफ जी आपकी साइड इक्वल हो जाए एस टी के, देन यू विल से दैट ट्राइंगल ई एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस टी बाय एंगल साइड एंगल, क्योंकि एक एंगल इक्वल हुआ एक एंगल के, नेक्स्ट सेकेंड एंगल इक्वल हुआ सेकेंड एंगल के, एंड द इंक्लूडेड साइड इज इक्वल। दिस इज सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इज योर एंगल एंगल साइड। इट मीन्स टू एंगल और साइड आपकी कोई भी हो, ठीक है, अगर इंक्लूडेड हो गई तो वो एंगल साइड एंगल बन जाना है अपने आप, और अगर इंक्लूडेड नहीं है तो वो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होगा आपका। एंड ऑल्सो क्लास 9 आई मस्ट टेल यू दैट दिस एंगल साइड एंगल की थ्योरम, इस थ्योरम का प्रूफ which used to be very important and it generally comes in the exam has been deleted according to the revised सिलेबस ऑफ द क्लास 9। ठीक है, इसका आपका थ्योरम का प्रूफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था वो डिलीट कर दिया है, एंगल साइड एंगल थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, दैट इज देयरफॉर आई एम नॉट प्रूविंग हियर द एंगल साइड एंगल। सो एंगल एंगल साइड द थ्योरम, इसका भी आपका प्रूफ नहीं है, यू विल जस्ट remember, you will just understand the criteria and the congruence rule and will apply it to your questions. So angle angle side congruence rule, if any two angles and a non included side of one triangle, ठीक है, non included side of one triangle are equal to the corresponding angles, ठीक है, जो एंगल आप इधर ले रहे हैं उसी के ही corresponding दूसरा एंगल हो आपका, and the corresponding angles and side of another triangle, then the two triangles are congruent. तो two triangles आपके congruent हो जाएंगे, मतलब roughly taking, अगर आपका ऐसे triangle है, I'm drawing just rough for you, okay, you will draw with the help of a scale, and आपका यहाँ पर A B C D E F. So if you have angle A equal to angle D and you have angle B equal to angle E and the side AC is equal to DF, then you will say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay. So these are your basically the congruency criteria, the three criteria that we have discussed. The more criteria we will discuss in the next section. Before that, we have exercise 7.1 in which I am solving question number 1 and 2 for you. So the question number 1 says, the question number 1 here says in the quadrilateral ACBD, okay, AC is given equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC, this triangle ABC is congruent to ABD. ABD के congruent करना है, ABC के congruent करना है ABD. What can you say about BC and BD? Okay, so what you will have the solution as follows. The first very simple solution, in the triangle ABC and ABD, okay, you will have AB is in this triangle also and AB is in this triangle also, so AB is equals to AB, common side, ठीक है, AC is equals to AD given,
तो आपके पास, आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं ए बी सी को, तो मेरे पास ये वाली साइड का हो गया, ये वाली साइड भी हो गई। तो मुझे क्या चाहिए, दो साइड के बीच में जो एंगल है इंक्लूडेड, अगर वो मिल जाए तो मैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, सिंस ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ए बी बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। सो हेयर यू गेट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी बाय एस क्राइटेरिया। एंड आपकी साइड पूछा है बी सी एंड बी डी के बारे में, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी, यू विल से दिस, ठीक है। बी सी यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये रही बी सी आपकी और ये रही बी डी, और ये रहा बी सी और ये रही बी डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, क्योंकि मैं अगर इस ट्रायंगल को ओवरलैप करूँ इसके ऊपर, तो डी वर्टेक्स सी वर्टेक्स के ऊपर आ जाएगा, ए पर रहेगा, बी बी पर रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बी सी साइड डी बी या बी डी को ओवरलैप कर लेगी कम्प्लीटली। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ जस्ट सिमिलर। ओके, इसमें हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं अगेन। It says that your ABCD is quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle your ABD. Here ABD, this triangle is congruent to triangle this, that is your CBA. Prove that triangle ABD is congruent to BAC, this one, BD is equals to AC and angle ABD is equals to angle BAC, ये हमें प्रूव करना है। And also class 9, I must tell you today that this book that you are seeing on the screen is the same book that I have read when I was in 9th standard. This is same book. It means I have read this book when I was in 9th standard. So come to the question. The question number 2. Okay, here's the figure. And we have to prove that this triangle ABD को हमें प्रूव करना है BAC triangle के, ठीक है, ABD BAC. So here you can see that what you have angle DAB, this angle, okay, given to एंगल CBA इक्वल टू CBA, ये वाला एंगल, मतलब इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल आपका, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब मैंने इसको रेड पेन से किया हुआ है, इसको पेंसिल से किए है। आप इसको इमेजिन करो कि जब आप इसको ऐसे टर्न करोगे और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे, तो आपका ये मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं आप इसको। तो एंगल A जो है वो B के आपके इक्वल है और वो गिवन भी है, ठीक है, ये गिवन है। आपको दिया हुआ है AD BC के इक्वल है, इट मीन्स ये वाला ऐसे आएगा, AD वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके ऊपर ऐसे आएगा, एंड AD आपका BC के इक्वल है, साइड भी इक्वल हो गई, ये वाली साइड हो गई, ठीक है, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, बची क्या, अगर ये वाला ट्रायंगल, ये इस वाले ट्रायंगल की बात करो तो साइड एंगल ये वाली साइड AB बची, और इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड थी, एंगल था, और यही AB थी, और AB इज इक्वल्स टू BA, that is common side. So therefore the triangle ABD become congruent to BAC. Okay, so you have here by side angle side criteria, and also BD is equals to AC. BD जो है आपका, this BD become equal to AC by corresponding parts of congruent triangle. ये आपको पूरा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको फुल फॉर्म पता चल जाए इसलिए लिखा है, बाय CPCT लिखेंगे आप सिर्फ, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle, and angle ABD, this angle equals to angle BAC, this angle, by CPCT. ओके, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ABD BAC के। So this is all for today's class 9. Watch the complete video, understand the concept. This is something you're previously learned, concept of congruence triangle, and please share and subscribe the channel so that the maximum students can get these videos and help in this period of pandemic, and they must be regular with their studies, and this is something motivating and encouraging for me also. So thank you class for watching the videos. Thanks again.